वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। हरि ओम। इस बार के जो आर्टिकल्स हैं, दो आर्टिकल श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग से है। श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर कहा कि इस बार जरा चेंज के लिए ठाकुर के आर्टिकल्स लिए जाए, ठाकुर के संबंध में बात की जाए, साधना के बारे में बात की जाए। तो वो हो गए हैं और इसकी समरी प्रभा सिंह करेंगी। ठीक है, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई प्रभा, यस स्टार्ट करें। कैन यू हियर मी? Yes, yes, yes. Need for the study of the life of a divine incarnation as a sadhak. The study of the religious histories of the world reveals that except in the case of Lord Buddha and Sri Chaitanya, there is a detailed account available of the spiritual disciplines and practices. प्रभा थोड़ा स्लो करो, थोड़ा बहुत फास्ट कर रही है, थोड़ा स्लो करो। The study of religious histories of the world reveals that except in the case of Lord Buddha and Sri Chaitanya, there is a little detailed account available of the spiritual disciplines and practices of the incarnation of God as aspirants. In the history of their lives, we do not meet with the detailed description of indomitable zeal and unbounded love, which they nurtured in their hearts and with the help of which they proceeded to realize the truth in life. Further, we do not find either a natural nexus of the cause and effect between their wonderful actions and behavior during the later part of their lives. On the one hand, and the education and the action and aspiration of their childhood, youth, etc. On the other, for example, how Lord Sri Krishna, the darling of the gopis of Vrindavan, became transformed into Sri Krishna, the Lord of Dwarka and of the religion. It is not clearly indicated, only a fact or two of the wonderfully Catholic life of Jesus the Christ before his 13th year is known to us. Only all concording preaching of Acharya Sankara are recorded, and so it is with all others. The devotee like to see their beloved master ever perfect. They refuse to admit that because they have assumed human forms, any kind of human weakness or lack of insight or power could ever creep into their character. Even in our time, we have known many eminent devotees of our master having the firm conviction that his disease was a feigning of this sort. It is due to mere weakness that the devotee arrive at such a conclusion. They do not like to attribute human efforts, aims, etc. to the incarnation of God only because such a nation they think would harm their devotion. Therefore, we have nothing to say against them. When the devotees of the master express their great eagerness to have some kind of vision as a direct evidence of particular powers of God, endearingly would he say to them many a times, "Ah, it is not good to have such visions. Fear will intervene when you see powers. Feeding and dressing him and the deep loving relation of thou and I will all cease. Alas, how often did we not feel piqued on such occasions and think that he evaded our request only because he would not bestow on us the vision." The master told us time and again that Swami Vivekananda in course of time would have the privilege of possessing the power and there will do much good to the people. Such a highly qualified person as the Swami is indeed rare in the world. The master knew it well,
from the very beginning of their meeting and started molding his character and religious life in a special way by imparting the knowledge of the unity of existence spoken of in the Vedanta. Again, although he was training the Swami that way, the master was guiding Swami Brahmananda and his other boy devotees in their spiritual lives in various other ways. Some through the worship of God and forms, some through that of God with attributes but without forms, other through pure unalloyed devotion, yet others through devotion mingled with discrimination between the real and unreal, and so on. It was March 1886. The master at the Kasipur garden was daily becoming weaker on account of disease in his throat. But he engaged himself with a far greater and much more unstinging enthusiasm than before in molding the spiritual lives of their devotees, particularly the life of Swami Vivekananda. He did not stop merely with teaching the Swami the path of sadhana and helping him to carry the teaching into practice, but also training him up to something else, namely how to prevent the other boy devotees from returning to worldly life and how to guide them and hold them together. Then there was a light awakening in the Swami of the power of transmitting spiritually to others by a touch. No doubt he had felt that power arise within him from time to time, but he had not yet tested the truth or falsity of it by touching anyone that way. After finishing the worship, jap and meditation pertaining to the first quarter of the night, the Swami was taking rest and conversing with others, sitting on the worshipper's seat. One of the companions went out to prepare a smoke for him. Another went towards the residential quarters on an important work. Just at that time, a keen feeling of that divine power arose suddenly in the Swami. He wanted to observe its effect by putting it to test that night and said to Swami A, who was sitting in front of him, "Do touch me for a while." In the meantime, the boy who had gone to prepare tobacco entered the room and saw Swami sitting motionless in meditation, and A, with his eyes shut, touching the Swami's right knee with his right hand, which he noticed was rapidly trembling. A minute or two elapsed thus when the Swami opened his eyes and said, "That is enough. How did you feel?" No sooner had the master seen the Swami that he said, "What is this? Expenditure with hardly any accumulation. Allow it first to accumulate well in yourself. Then you will know where and how to spend it. Mother herself will teach. Don't you see what harm you have done to him by injecting your attitude of mind into him? He has been progressing till now with a particular mental attitude, the whole of which was now destroyed, like a miscarriage during the 6th month of pregnancy. What's done is done. Don't act so thoughtlessly from now on. The boy, however, is lucky that greater harm is not befallen him." The Swami said afterwards, "I became completely flabbergasted. The master could know whatever we did at that time of the worship. What else could I do but remain silent when he scolded me like that?" Thus instructed, we ask that then man has no hand in practicing religious discipline. Everyone may say, "Whatever I do is according to his will." The incarnation of God have to experience to a great extent the spiritual blindness and circumscribed knowledge experienced by us. When they assume human bodies and play their parts in human beings, they have to make efforts like us to discover the way out of spiritual darkness and ignorance. Person who can ascend to the state of Godhead
and can truly worship him as the divine being are very few. Weak aspirants like ourselves have been till now very far from that state. Thus, having compassion or ordinary mortals like ourselves, desiring to accept our heartfelt worship, God descends to the plane of human beings, putting on the appearance of the God man by assuming a human body and human feelings. What happened? क्या हुआ? नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा सा नीचे दूसरा वाला Second स्टार्ट कर chapter. रही हूँ. Yes. Huh? Yes. So I'm starting. क्या हुआ? बीच में अटक गए? हो Second नहीं हो chapter गया. शुरू करो. शुरू कर दिया. To become truly acquainted with the sadhak state of the master life, we must first of all know what sadhan is. An objection may be raised. Why do you increase the bulk of book by raising this topic when India has all along been engaged in it in some form or other? Which other nation of the world has applied and is still applying its power to realize directly the truth of spiritual realm as this country has done since the very dawn of time? In which other country have so many incarnations of God and knowers of Brahman been born? Therefore, it is superfluous to recount the fundamental principle of spiritual discipline to us who are already acquainted with them. The master used to say, seeing Brahman or God in all being is the last word of sadhana. It falls to the lot of man as the ultimate development of spiritual discipline. Questions are there. Why is this fact not directly felt by us? Answer is, you are in a delusion. How can you detect it till it removed? It is by compassion with real things and state only that we detect external and internal delusion. Similarly, you must have the kind of knowledge if you want to detect the delusion. Then is the question, well, what is the cause of that delusion and when did it arise in us? The cause of delusion here is the same as it is everywhere. It is ignorance. How can you know when that ignorance arose? As long as you are ignorant, your efforts to know it are in vain. As long as one dream a dream, one remains convinced that it is real. When sleep breaks, the dream is compared with the waking state and is known as unreal. Then what is the way out? The way out is to remove that ignorance. I can tell you with certainty, and ignorance and delusion can be removed. The ancient seers were able to remove them and have left us instructions above the method. Therefore, from and the standpoint of the scriptures, it is seen that universe, which is the idea in the universal mind, is the way and the ideation of our minds also. For our limited individual minds have an internal inseparable relations with the aggregate universal mind, like that between the limbs and the body. Now it is clear that our conception, experiences, etc. of the universe have assumed their present forms as a result of our habit accumulation, accumulated over an almost infinity long time. So if we want to have the right knowledge of the universe, we shall have to be acquainted with the entity beyond name and form, time and space, mind, intellect, and all other things compromise in this universe. As human life is ever changing and ends in sure death, the knowledge of the transitories of the world arises easily in it. Therefore, it is probable that in the past, the search for the ultimate cause of the universe at the first took the path of not this, together with the complete renunciation of the common conception of the universe. We have said before that notion about the universe held by generality of the people has to be renounced both by men on the path of knowledge and those on that of devotion. By the complete renunciation of it, man becomes free from all mental modification and is
by fit for samadhi. We have designated the path of devotion as the path of this. For although the traveler on the path has the actual knowledge of transience of the world, he believes in God, its creator, and has the conviction of the reality and existence of the world created by him. The devout aspirant gradually comes to have the vision of various divine forms springing from his own chosen ideal. As the result of his faith that he has chosen out of his own accord, assumed all forms. The master used to say, a person who has a vision of one such form in the living fashion gets easily the vision of all other forms. Again, during deep meditation, experience of the realm idea becomes so powerful in mind of the devotee that he does not have the slightest knowledge of the external world for the time being. This condition devotee has been designated the scripture Savikalp Samadhi. Thus, the gross external world vanishes from the mind of the devotee owing to the meditation on a particular object of the realm of the ideal world. And when one idea becomes dominant, all other ideas disappear. The attaining of the Nirvikalpa Samadhi is not very remote from this devout aspirant who has been able to advance so far. Thus, the mind of the person getting rid of the belief in the existence of the external world to which he has been accustomed for infinitely long time. There are ways laid down by the scripture for a person treading the path of knowledge and of the devotion. The divine and human are found incarnation of God all their lives. Sometimes they are seen even during the sadhan period to endowed with the knowledge and power proper to perfected persons. This happens because they naturally have the power of roaming on both the planes, the divine and the human, or because their divine nature is inborn and spontaneous. Sometimes it pierces the external veil of the human nature and manifests itself from time to time. In this modern age, the divine nature of those characters are being completely disregarded, while the human one is being studied. In the present instances, we shall make an effort to explain the reader by discussion of those characters, both the nature coexists in them. It is needless to add here that we would have been able to look upon the character of incarnation of God in that way if we had not had the privilege of meeting the master. हो गया महाराज? हो गया? Finished? Yes. Okay? Very good. Thank you. Okay. Thank you. The difficult part, it is difficult to summarize. Okay? Now shall we start questions? सबसे पहले देवाशीष. हाँ महाराज जी प्रणाम महाराज जी. हाँ प्रणाम महाराज जी प्रणाम. अच्छा ये दो पार्ट में है ये इंट्रोडक्शन से 3 को कुछ क्वेश्चंस है ऑल टुगेदर एक नंबर 1 से ले. अच्छा ठीक है. थैंक यू महाराज जी. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 1 पेज 101. In course of time when devotion matures and the love depends considerably, such thoughts regarding the powers of God are resented as veritable obstacles to the path of devotion, and the devotees carefully avoid them from a distance. My question is, why power of God is resented as veritable obstacle to the path of devotion, and the devotees carefully avoid them from a distance? You see, अगर भगवान को सोचेंगे कि उसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिमान है, तो इंटीमेसी नहीं हो सकेगी, अत्यंत प्रिय नहीं हो सकेंगे. अच्छा. तो श्री कृष्ण जब बालक थे ना, तो जब वो मिराकल करते थे तो यशोदा को अच्छा नहीं लगता था. वो लोग यशोदा उसको एकदम भूल जाती थी. यानी जब आप गॉड का अवेयरनेस भी नहीं रहनी चाहिए. अच्छा. यानी इसलिए क्या है कि
कि डोंट बी कॉन्शियस ऑफ द पावर्स, पावर रहेंगे ना तो भगवान से दूरी हो जाती है। दैट इज द पॉइंट। इंटीमेसी। श्री कृष्ण जो जसोदा तो बिल्कुल बच्चा समझती थी कि ये मेरे बिना चलेगा नहीं, इसको खाना कौन खिलाएगा। और अगर उसको मान लो ये सर्वशक्तिमान है तो उससे प्रेम कैसे कर सकेंगे। इसलिए भक्त जो है वो पावर्स को रिजेंट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, समझ में आया। एक दूसरी कहानी है एक कि वो एक लड़के एक थी महिला, वो एक बच्चे को बालक गोपाल को अपना बच्चा समझती थी। तो वो एक बार क्या हुआ कि बाल गोपाल चिल्लाने लगे, मामा बिल्ली आई बिल्ली आई। तो उसके मुंह से निकल गया कि अरे जगत के नियंता तुम क्या बिल्ली से डरते हो। बस ऐसा बोलना था कि वो भगवान का रूप गायब हो गया, उसके बाद नहीं दिखा। अच्छा, समझे ना, समझ गए इस बात को कि नहीं? हाँ समझ गए महाराज जी, समझ गए। महाराज जी कभी कभी हम जब मेरा जब कोई संकट आता है, डेंजर आता है, तो हम भगवान को ऑल पावरफुल मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उस समय तुम तो मानते हैं कि वो कर सकते हैं ये चीज। नहीं, वो तो क्या है कि वो हल्का हल्का प्रकार का है। भगवान को सर्वशक्तिमान बनाया और अपने को दुर्बल बनाया। तो ये शुरू की भक्ति ऐसी होती है। अच्छा अच्छा, शुरू की भक्ति ऐसी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 106 to 107 में श्री रामकृष्ण said when the divine sports as a human being he behaves exactly like an ordinary man and experiences will and woe and attains perfection by dint of personal effort. My question is the avatar not aware of his divinity that he is an avatar? If so, then he is not aware of his. If so, then he gets all the confidence in the world that he will succeed, will and oh. But in the case of an ordinary person, it does not happen. Sri Ramakrishna attained perfection of 64 tantric ways of sadhana in a few days, which took 64 lives for ordinary persons to perhaps. नहीं, श्री रामकृष्ण ने तो साधना क्यों की? अगर वो सिद्ध ही होते, भगवान होते, तो इट वाज नेसेसरी फॉर हु टू डू साधना। ही डज साधना टू शो। ही स्ट्रगल, रात दिन तपस्या की थी उन्होंने, सोए नहीं थे। तो क्यों किया था ये तुम्हारे लिए आदर्श बनाने के लिए है। आदर्श साधक हो जाओगे तब यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग। प्रत्येक तांत्रिक भाव को, एक भाव को वो 3 दिन में कर लेते थे। For us it will take 3 lives. Yet he did it. Point is this. The point is this. ठाकुर बोलते थे तीव्रता से करो, मैंने किया है। अगर भगवान मान लेंगे ना तो नहीं चलेगा, उनको आदर्श साधक मानना पड़ेगा। बाबा ये बहुत जरूरी बात है। आदर्श यानी साधना, साधक भाव का उद्देश्य क्या है? The whole chapter is on साधक भाव। बड़ा लंबा साधक भाव है। यदि ठाकुर अवतार ही होते, अवतार भगवान ही होते तो फिर साधना की जरूरत क्या थी? That is the point. वो अपने आप जानते थे वो कौन है, अपने आप जानते थे वो अपने आप जानते थे वो कौन है? He knew himself that who he was. No, he did not knew before. अच्छा, यानी वो क्या है कि नहीं तो वो करते क्या, तपस्या क्या कैसे करते, साधना क्या करते? अच्छा, हाँ समझ में आया। तो बीच में पता चलता था, लेकिन वो उसके अनुसार साधना नहीं कर सकते थे। अच्छा, हमारी समझ में आया महाराज जी। थैंक यू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 3 है 109। The incarnations of God have to experience to a great extent the spiritual blindness and circumscribed knowledge experienced by us. Same question. When they assume human bodies and pay their parts as human beings, what is called spiritual blindness? They are aware of the real divine nature. हाँ, तो spiritual blindness क्या होता है महाराज जी? मतलब ये अपना रियल नेचर, डिवाइन नेचर नहीं जानते। अच्छा, नॉट रियल नेचर, डिवाइन नेचर। हम भी तो नहीं जानते अपने आप को। हम लोग तो शरीर मानते हैं अपने आप को।
उनमें भी ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस रहती है, यही तो बात हो रही है। तीनों तुम्हारे प्रश्न एक ही प्रकार के एग्जैक्टली द सेम आंसर होता है। हाँ सर महाराज जी समझ गए, समझ में आ गया। अब चैप्टर 1 से साधका एंड साधना क्वेश्चन नंबर 4 पेज 113 का एंड में है। इट इज comparison with the real things and states only that we detect external and internal delusions. Similarly, we must have that kind of knowledge if you want to detect the delusion. My question is, what are the external and internal delusions and how to compare it देखो with real things? एक्सटर्नल डेल्यूजन है, सूर्य उगता हुआ दिखता है ना। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ तो सूर्य उगता है क्या? वो तो पृथ्वी घूम रही है, हमको सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 ये एक्सटर्नल डेल्यूजन हुआ। हाँ 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 सांप 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 देख के भाग रहे हैं, वो तो रस्सी थी। हाँ 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 तो ये एक्सटर्नल डेल्यूजन, बाहर जो डेल्यूजन दिखेंगे वो एक्सटर्नल डेल्यूजन। हाँ हाँ ये सारा जगत जो है ना, वो हमें जगत दिखाई दे रहा है, हाँ वो हाँ सब हाँ, मिथ्या है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है एक्सटर्नल डेल्यूजन। हाँ 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 अच्छा, हाँ दूसरा इंटरनल इंटरनल डेल्यूजन क्या है? मैं महान हूँ, मैं संत हूँ, अपने आप को क्या क्या समझने लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अपने को, दूसरे को शत्रु समझना, शत्रु मित्र समझना, ये सब जो मन में जो बातें अपनी होती है, ये हाँ सब हाँ, इंटरनल डेल्यूजन। मन हमारा हमेशा हमेशा भ्रम में ही पड़ा रहता है। हम एक अच्छा सामने व्यक्ति आ रहा है तो उसको समझते हैं कि ये बदमाश है। अच्छा हम अच्छा, जानते नहीं है क्या है व्यक्ति, किसी ने बोल दिया कि ये बदमाश है, बस। हम्म, ये मन में उत्पन्न हुआ, तो हाँ हाँ हाँ, ये हुआ इंटरनल डेल्यूजन। अच्छा अच्छा। तो इसको जो कंपेयर करना पड़ेगा रियल थिंग्स एंड स्टेट्स, इसका थोड़ा बताएं। हाँ, हाउ टू कंपेयर इट, दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिल्यूजन्स को हाउ टू कंपेयर इट विथ रियल थिंग्स एंड स्टेट्स। हमें हमको सोचना पड़ेगा कि ये मिथ्या है, यही है रियल थिंग्स, ऐसा है क्या? नहीं, तुमने तो क्वेश्चन पूछा एक्सटर्नल इंटरनल डेल्यूजन, मैंने बता दिया तुमको। हाँ उसका बाद उसका साथ में जुड़ा हुआ है क्वेश्चन का, एंड हाउ टू कंपेयर इट विथ रियल थिंग्स एंड स्टेट्स। नहीं नहीं, ऐसा है कि सूर्य जो उग रहा है, कोई आदमी आके बताएगा हमको, कोई गुरु आके बताएगा कि अरे सूर्य उगता नहीं डूबता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। अच्छा आपने सांप देखा है, भाग रहे हैं, तो कोई दूसरा समझदार आदमी आके कहेगा अरे भागो नहीं भागो नहीं, सांप नहीं है वो वहां पे, आओ अच्छा मेरे अच्छा, पास, मैं बताता हूँ, वो रस्सी पड़ी हुई है। हाँ महाराज जी, कोई गुरु हमको बताएगा तब पता चलेगा, डिल्यूशन बात होगा। अच्छा अच्छा ये जगत को हम सत्य समझ रहे हैं, ये मिथ्या है, गुरु आके बताते हैं, अच्छा 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 पता अच्छा, चलता है कि हाँ सत्य क्या है। हाँ समझ में आया, थैंक यू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 5 है 115 पेज नंबर। इन द लिमिटलेस infinite cosmic mind, the universe has arisen by way of ideation, and as the individual minds of yours, of mine, and of all people form parts of and are comprised in that cosmic mind, we all have experienced the same idea. My question is, when a seer of truth experiences that we are in delusion, why can't I experience the same thing? After all, I am also connected to the cosmic mind in which seers of truth or the rishis are connected. We do not experience the same ideas. Why? हाँ, तो ऐसा है कि ऋषिज का, यानी ये समझ लो कि करोड़ों लोग जो हैं वो एक डिल्यूजन में है। उसमें एक ऋषि जो है उसको ज्ञान हो गया, हाँ, तो कितना कम होगा, अच्छा कितना अच्छा, डाइल्यूट हो जाएगा, सोचो। अच्छा अच्छा, अगर इसमें से 100 में से 99% लिबरेटेड होते, वो जानते कि ये सब मिथ्या है, हाँ 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 तब वो बाकी एक व्यक्ति है वो भी जान जाता है कि मिथ्या है। समझे हाँ बात हाँ तो, इसको कि नहीं समझे? हाँ समझ गए, इज समझ में क्वेश्चन आया। इज ओके। चलो हाँ आगे चलो। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 116 में, for our limited individual minds have an external inseparable relation with the aggregate universal mind, like that between the limbs and the body, not understood. समझ में नहीं आया ये मुझे। तो सेम थिंग, अभी जस्ट नाउ ये तो पता है, इसे एग्जैक्टली सिमिलर है। यूनिवर्सल माइंड और इंडिविजुअल माइंड की बात ही कर रहे हो ना तुम? ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ,
अच्छा अच्छा, limbs, that means it is connect just like limbs of our body. अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, is the cosmic mind constant or it is changing as the individual mind? ये जो कॉस्मिक माइंड होता है ये तो कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी चेंज करता है, क्योंकि माइंड का नेचर ही है चेंज करना। हाँ, माइंड चेंजिंग, कॉस्मिक माइंड जो है तो वैसा ही बना रहेगा जब तक भगवान चाहेंगे। तो कॉस्मिक महाराज, हम जब माइंड बोलते हैं तो मन तो चेंज होता है, तो कॉस्मिक माइंड भी चेंज होना चाहिए। नहीं, कॉस्मिक अभी जो बात किया ना, सब बार बोध कर रहे हैं ना, देयर इज अ कॉस्मिक माइंड, इसीलिए तो सब में डिल्यूजन एक साथ होता है। सारा आर्टिकल में कॉस्मिक माइंड को पूरी तरह बताया गया है क्लियरली। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है जी महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 117, we shall have to be acquainted with the entity beyond name and form, time and space, mind and intellect, and all other things comprised in the universe. What will be our effort to know the entity and how? ये साधना करना ही पड़ेगी भाई। You do spiritual practice, उसके द्वारा ही आप उसको go beyond it। अच्छा, इसको acquainted with the entity beyond name and, अच्छा entity, अच्छा ठीक है, समझ गया, name and form, हाँ हाँ समझ में आया महाराज जी, name and चलो form। आगे चलो। What? अच्छा, question number 8, page number 118. Therefore, it is probable that in the past, the search for the ultimate cause of the universe at first took the path of not this, not this, together with the complete renunciation of the common conception of the universe. What is meant by the complete renunciation of the common conception of the universe? What is the meant by, ask again, फिर क्या बोलो? मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, what is meant by the complete renunciation of the common conception of the universe? कॉमन जगत जो है ये मिथ्या जानकर उसको छोड़ दो। जगत जो कॉमन कंसेप्ट ये है जगत क्या, कि जगत सत्य है, ये दिस इज द कॉमन कंसेप्ट, दिस हैज टू बी गिवन अप, जगत मिथ्या है ये जान के उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग काम कैसे करेंगे अगर जगत मिथ्या है तो महाराज जी? तो काम छोड़ो ना, काम करने से क्या होगा? तुमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है महाराज जी, ठीक है, थैंक यू महाराज तो जी। ये स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण भी काम किए थे जगत को मिथ्या जानकर। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए महाराज जी, समझ हम जानते हैं फंसे हुए हैं संसार में। हाँ ठीक है महाराज, संसार से समझ में मुक्त होकर काम करो। अच्छा, थैंक यू महाराज जी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 119, how the aspirant on the path of knowledge makes the effort to know what I am? ये भी साधना से ही होगा। साधना से होगा, त्वम पद शोधन तत्पद शोधन, इसको बोलते हैं। हम, मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये इसको आई व्हाट एम आई ऐसा सोचना पड़ेगा। मैं बुद्धि नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? कि मैं तो बुद्धि को देख रहा हूँ, मेरी बुद्धि है, तो मेरी बुद्धि और मैं अलग हो गए। मैं देह नहीं हूँ क्योंकि मैं देह से अलग हूँ, देह इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई एम द सब्जेक्ट। इस प्रकार विचार करके सबसे अपने को अलग करना। हाँ थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, बस खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। कौन है सेकंड? सुबीर मजुमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज जी पहला सवाल है, आई विल जस्ट से, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, on page 99, which is the first page also, point 1, it has been said only of Sri Chaitanya and Lord Buddha, besides our Thakur, that we have detailed accounts of their spiritual disciplines. तो मेरा सवाल यह है कि are not there accounts of Lord Mahavir and Guru Nanak also? उनके बारे में भी थोड़ा जान है, लेकिन कम है। अच्छा, इन्होंने कठोर तपस्या की थी, बहुत व्रत किए थे, 3-4 महीने तक खाते नहीं थे, ध्यान करते थे, इसके अलावा ज्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा, और वो क्या एक आसन पे बैठ जाते थे, भिक्षा करते थे, ऐसा मैंने जब देखा, ये सब है। अच्छा, नानक के बारे में आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द नानक। वो वीवर थे, वो काटते रहते थे, वीविंग करते रहते थे और भजन गाते रहते थे, इसके सिवा मैं ज्यादा जानता नहीं। अच्छा, और वो मतलब वो मर्दाना से मिले, फिर वो
गल्फ में भी गए, वहां से वापस आए, वो सारी मतलब डिटेल ज्यादा नहीं है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता सर। We don't have details. I don't right, know anything about it. Right, Maharaj. Okay. My second question, Maharaj ji, hai on page 102.5. There are two sections I have asked. Why did Swami Vivekananda regard non-dualistic mode taught in Vedanta as blasphemy? Is this because of the influence of Christianity on him? Because even Christianity, like Islam, thought that thinking of oneself as God is blasphemy. अपने आप को भगवान समझना ब्लास्फेमी, ये वो भी मानते हैं, क्राइस्ट के फॉलोअर्स और इस्लाम के फॉलोअर्स। तो क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ा था स्वामी जी पर, जो वो इस प्रकार नहीं वो कहते थे? नहीं, तो ब्लास्फेमी ऐसे नहीं है, यानी अद्वैत की बात करेंगे और संसार में रहेंगे। पेज नंबर बोलो तो, फिर से बोलो। इट इज ऑन पेज 102, वो पॉइंट के हिसाब से 0.5 है। 102? हाँ, पेज 102। क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में जाते थे। हाँ, पेज ना, वो क्या है कि वो ब्राह्मण समाज में थे ना। हाँ, तो उसका इन्फ्लुएंस भी तो क्रिश्चियनिटी से हुआ ना। वो तो नहीं। और he would ask me to read some part of अध्यात्म रामायण, तो मतलब वो कहते थे, स्वामी जी पढ़ते थे, what is this? What is the use of this book? It is a sin to think I am God. The book teaches same blasphemy. I should be burned. जी। वो बोलते थे, इसलिए कि वो द्वैतवादी थे ना, ब्राह्मण समाज के प्रभाव के कारण। हाँ, तो मेरा यही कहना था, हमारा ब्राह्मण समाजवादी तो सारे वो क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस थे ना। ब्राह्मणवादी क्रिश्चियनिटी तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे हिंदू धर्म में तो द्वैतवादी लोग जितने अभी भी है ना, वो भी अगर आप हम ब्रह्मास्मि करो तो कान में हाथ लगा देंगे, बोलेंगे सुनना भी नहीं चाहिए इस चीज को। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण समाज ही, बहुत जितने द्वैतवादी वो कहते हैं कि अद्वैतवादी सब जो है ब्लास्फेमी है, भयानक है। हाँ, कट्टर द्वैतवादी ऐसे ही है। जी, नहीं हो सकता, असंभव है। तो ये आप ऐसा मत समझिए कि क्रिश्चियनिटी की बात है। हिंदू धर्म में भी अधिकांश जो है वो तो द्वैतवादी ही हैं। जी। और अधिकांश जो है वो कट्टर द्वैतवादी है, जो अद्वैत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जी महाराज। एंड दूसरा सवाल था इसमें, क्योंकि स्वामी जी को एक तरह से पढ़ाते थे और बाकियों को दूसरे चीजें पढ़ने के लिए बोलते थे, तो हम लोगों के बारे में व्हाट अबाउट अस, शुड वी रीड मोर डिवोशनल स्क्रिप्चर्स और मोर ऑफ वेदांता स्क्रिप्चर्स? हम लोगों को किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे साधक जीवन के लिए? नहीं, क्या हुआ तुम्हारा प्रश्न है? मतलब हमारे साधक जीवन के लिए हमें पढ़ना क्या चाहिए ज्यादा, डिवोशनल स्क्रिप्चर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या वेदांत स्क्रिप्चर्स? यू नो वो स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे, you give a injection of Vedanta every day. Yes. वो कहते थे रोज अपने मन को एक इंजेक्शन वेदांत का रोज देना चाहिए। यतीश्वरानंद जी सब कहते थे, तुम्हारी जो भी साधना हो, तो कृष्ण को भजते हो, राम को भजते हो, राम कृष्ण को भजते हो, लेकिन एक इंजेक्शन वेदांत का एवरी डे देना। ये सत्यरूपानंद जी ने बिल्कुल प्रारंभिक जीवन में, जब मैं स्टूडेंट था, तब मुझे कहा था कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि साहम, यानी जो वो है ना, क्या कहते हैं, निर्वाण षटक, उसको प्रतिदिन पढ़ा करो। मेरे को उस समय कहा था और अभी मैं करता हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मालूम है तो? जी महाराज जी। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाँ जी महाराज। तो उसको प्रतिदिन पढ़ने से क्या नुकसान है? करो ना, याद रहेगा एक बार कि मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वभाव। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, ठीक है, दोनों साथ साथ चल सकता है। ऐसा है कि इससे हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस कम होगी, देहात्म बोध हमारा कम होगा, और ये भक्ति में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जी। महाराज, वेदांत का जो इंजेक्शन है, उसके लिए क्या वेदांत कुछ लिटरेचर उपनिषद पढ़ने का रोज? क्या वेदांत का जो इंजेक्शन बता रहे रोज लगाने का है, उसके लिए हमें उपनिषद थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, वो इंजेक्शन खरीद के लाना पड़ेगा ना।
तो इंजेक्शन तो नहीं मिल रहा, उपनिषद में क्या है इंजेक्शन? वही मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इसको प्रोनाउंस करो ना रोज। ठीक है। वो निर्वाण षटक है ना, अब वो तो पढ़ते हैं हम लोग। हाँ महाराज जी, हाँ बस उसको पढ़ो, ठीक, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 107 इट इज देयर, पॉइंट 6 पे है। व्हाट डिड ठाकुर मीन व्हेन ही सेड द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड, नाउ कास्ट योर माइंड इन इट एंड गेट द फॉर्म। ऑन कथामृत में भी और यहाँ भी कोट किया गया है, उन्होंने कहा है कि आई हैव कुक्ड द फूड, नाउ पार्टेक इट। व्हाट डज ही मीन? मतलब ये What spiritual discipline is he talking about? हाँ वही तो है क्या है कि मैंने जो करना था वो कर दिया है, अब हाँ. तुम जैसा मैंने कहा है उसके अनुसार करो। फॉलो व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुट ए मोल्ड, हाँ. उसके अंदर अपने को गढ़ लो। हाँ. ठाकुर ने जैसी साधना की थी वैसी साधना करनी चाहिए। व्याकुलता ठाकुर को जैसी थी, कैसे बैठ के ध्यान जप करते थे, ये अच्छा, एक तो ये मीनिंग है। और दूसरा ये है कि मैंने सब बना के रख लिया, उसको खाओ। तो खाओ का मतलब ये है कि पूर्ण शरणागति हो जाए, कुछ मत करो। ये इतना आसान नहीं है, दोनों कठिन है। जी जी जी, हाँ। और उसी पेज में ठाकुर जी कहते हैं, बी लाइक ए कास्ट ऑफ लीफ ब्लोन इन द विंड, झड़ेर एटो पाता in Bengali he says, cast off leaf in the wind. What does he mean? Is it also self surrender or absolute शरणागति? खूब कठिन, खूब डिफिकल्ट। हाँ, like the kitten, extremely difficult। हाँ, जैसे वो बिल्ली का बच्चा। ठीक है महाराज। हाँ बहुत मुश्किल है भाई। हाँ कुछ नहीं करना है, अपने को बड़ा करके देखो ना, पता चल जाएगा। इसलिए सेल्फ एफर्ट करना पड़ता है। ये करूँ। जी महाराज। अच्छा महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड फ्री विल एज एक्सप्लेन्ड बाय ठाकुर, जो उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है, बट शुड वी बिलीव इन प्री डेस्टिनेशन? हम लोगों को प्री डेस्टिनेशन में विश्वास रखना चाहिए? ऐसा है कि देखो, ये जो है ना, ये दोनों जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। जैनिज्म जो है ना, तो वो एक कर्मवाद में विश्वास करता है, पूर्व जन्म के कर्मों में, लेकिन उसके साथ में कठोर पुरुषार्थ की भी बात करता है। जी। अगर कर्म के द्वारा हमारा संस्कार, हमारा जीवन बना है, तो अभी हम कर्म करके उसको बदल भी सकते हैं, नया कर्म अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ये हमारी फ्री विल है। ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि फ्री विल क्या है? कुछ नहीं है, सब भगवान की इच्छा है। जी तो बोलते हैं ना। तो ये दो सिद्धांत हैं, याद रखो जी। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि कोई प्री डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी पुरुषार्थ है, सेल्फ विल है, हमारी इच्छा है सब कुछ। एग्जैक्टली। और एब्सोल्युटली लोग कहते हैं कि कोई भगवान की ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। ये जो है ना, ये बड़ी विचित्र बात है। और फिर नारद की कहानी है ना, और नारद की कहानी है, दो योगी मिले। बाद में आके एक योगी ने कहा है कि तुमने बहुत तपस्या की, कई जन्मों तक की है, अब केवल 3-4 जन्म में मुक्त हो जाओगे। और दूसरा खेलता कूदता रहता था, उसको उन्होंने कहा कि ये जो इमली के पत्ते हैं ना, पेड़ के पत्ते, इतने जन्म तुमको लगेंगे। तो वो कहता है मुक्त तो हो जाऊंगा ना? तो मुक्त हो जाओगे। वो हंसने नाचने लगा। उसी समय भगवान ने कहा कि तुम आपको अभी मुक्त हो गया। तो एक तरफ बेचारा कठोर तपस्या कर रहा था, और एक तरफ जो है वो पूर्ण शरणागत था। जी। अब देखो, दोनों चीजें हैं जी, ये बड़ा मुश्किल है। और ठाकुर ने बोल भी ना कहा कि गाय को रस्सी से बांधा है। तो कुछ हमारे हाथ में कुछ है और कुछ भगवान के हाथ में है, ये भी भावना है। लेकिन और ये रखना ही ठीक है जी। 100% सेल्फ सरेंडर के सब भगवान से होगा, बड़ा मुश्किल है बाबा।
जी महाराज, वेरी जी सब्जेक्ट। जी महाराज। महाराज जी एक मिनट महाराज जी, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि जैनिज्म में ये कहते हैं कि आप अपने कर्म से अपना जीवन बदल सकते हो। हाँ, और आपने ये भी बताया कि ठाकुर कहते हैं कि जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तो इसमें से हमने कौन सा पद अपनाना चाहिए? अरे आपको जो अच्छा लगे वो लो, हम क्यों बताएंगे? ये क्या बात? नहीं, ये नहीं, फिर चेला गुरु के पास क्यों आया है? नहीं तो सीखने के लिए आया है। नहीं आपको जो ठीक लगे वो बताएंगे, वो कुछ नहीं। ठाकुर ने ये कहा है और को ये कहा है, अब जहाँ आपको ठीक लगे तो कहो, हम कुछ नहीं बताने। चलो हम तो 100% सरेंडर करेंगे, कर्म नहीं कर सकते। महाराज बताएंगे कि साधना ही करो बस। सेल्फ एफर्ट। हाँ, मेरा लास्ट वर्ड इज साधना। अरे प्रश्न ये है कि पूर्ण शरणागति, जहाँ तक संसार की बात आएगी ना, तब कुछ पूर्ण शरणागति नहीं होगी, जीरो होगी। संसार की बात जो है ना, सब हम अपने पुरुषार्थ से करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, वहाँ शरणागति नहीं होगी। जहाँ साधना की बात होती है भगवान की इच्छा पे, भगवान जैसा करेंगे, ऐसे नहीं होती शरणागति। जी, इसलिए मैं कहता हूँ बाबा मेरे से मत पूछो। अच्छा जी जी फालतू की बातें हैं। जी 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 महाराज, समझ गए आप कि नहीं? जी जी महाराज जी, बिल्कुल। To work we have the right, nothing else. चलो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, ऑन पेज 115 ये कहा गया है, इन द लिमिटलेस इनफाइनाइट कॉस्मिक माइंड the universe has risen by way of ideation, that is creative imagination. ये जो creative imagination, ideation of universe, तुम्हारा गड़बड़ होगा है, वहाँ वो क्लियर नहीं आ रहा है, कट हो रहा है महाराज जी। creative ideation अब ठीक है, अब ठीक है, बोलो। बोलो, फिर से बोलो। तो यूनिवर्सल माइंड एज ए वे ऑफ आइडिएशन, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, वो क्या चीज है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसको पढ़ो तो क्या है कि मैं भी समझ में नहीं आया। एंड द अदर थिंग इज हाउ इज एवरीवन सीइंग द सेम थिंग। वो सब लोग एक ही चीज देख रहे हैं, यूनिवर्सल माइंड के बारे में कह रहे हैं, आइडिएशन के बारे में कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं यूनिवर्सल आइडिएशन की क्या चीज है महाराज जी? अब ये ऐसा है कि मतलब ये है कि अगर जगत को समझाना है तो कैसे किया जाए। तो उसने क्या है कि भगवान, यानी एक उपनिषद में मेरा वर्णन आता है, भगवान ने एक कल्पना की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ मैं बहुत हो जाऊं, और भगवान सारा जगत बन गए। अब भगवान ने इच्छा की कि मैं इस प्रकार संसार में रहूं, बस। अब संसार में लोग समझ में रहने लग गए। अब इसमें आप क्या प्रश्न करोगे? ये एक प्रकार की बात कह दी है। अच्छा, और मेरा दूसरा हिस्सा था उसमें कि हाउ इज एवरीवन सीइंग द सेम थिंग। हम लोग सब एक ही कॉस्मिक माइंड के हैं, इसीलिए हम लोग सब एक ही चीज देख रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली तो नहीं है, उसके साथ में इंडिविजुअलिटी भी है। तो हम जैसे कि हम दो जने, एक ही आदमी एक नारी को, एक संत जो है वो भगवती देखता है, और कामुक व्यक्ति जो है वो कामिनी देखता है। ये अंतर तो हुआ, भले ही एक नारी दिखाई दे रही है, तो भिन्न भिन्न भी देखते हैं ना। भिन्न भिन्न भी देखते हैं हमारा। हाँ, मन भिन्न होने के कारण भिन्न देखते हैं। तो अच्छा, लेकिन एक ही तो देखते हैं। हम जो संसार देखते हैं, तो बिल्ली भी तो देखती है, तो बिल्ली का देखना और हमारा देखना में कितना बड़ा अंतर है। वही चीज देख रही है बिल्ली। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं जू में जाता हूँ, मैं भी शेर देख रहा हूँ और बाकी लोग भी शेर देख रहे हैं, सभी एक ही चीज देख रहे हैं, तो ये डिल्यूजन कैसे हुआ? नहीं, वो कहते हैं ना कि जैसे भगवान ने, मैंने अभी कहा ना कि भगवान ने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं। अच्छा, तो भगवान ने तो संकल्प किया है, भगवान ने कहा सबको मोहित कर दो, एक कॉस्मिक डिल्यूजन भगवान ने क्रिएट किया, ये करो, समझ लो।
अच्छा अच्छा, तो तब सभी एक ही अभी चीज यही देख तो रहे हैं। कहा ओके शुरू ओके, शुरू में, प्रारंभ में यही सब कहते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, The मैं समझ point गया। is when you accept cosmic mind, हाँ हाँ, point is this, ठीक है ठीक है। कॉस्मिक माइंड से सब कुछ कॉस्मिक दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ दिखा दे रहा हाँ है, जगत दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं समझ गया महाराज। एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, ये पेज 117 पे है। उसमें कहते हैं द कॉन्सेप्शन एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स which has assumed their present forms as a result of our habits accumulated over an almost infinitely long time। जो हम देख रहे हैं ये हमारी आदत पड़ गई है, ये क्या संस्कार है? हाँ, संस्कार, संस्कार, ठीक है बस ठीक है, ये हाँ जन्म समझ, जन्मांतर के संस्कार के कारण हम इस प्रकार का सहते हैं। ठीक है, हाँ दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड क्लैरिफाइड। ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, कुंडू, कुंडू आ जाओ। महाराज महाराज जी, एक मिनट, मेरा निवेदन है, मेरे को महाराज जी जाना है, यदि आप मेरे को जल्दी ले लेंगे तो। आ जाइए, पहले आ जाइए आप। हाँ महाराज जी प्लीज। दिलीप महाराज आ जाइए, पहले आ अब जाइए। एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। जी क्या महाराज बात है, जी, एयरपोर्ट जाना है? हाँ महाराज जी, मेरा पहला सवाल है, a custom to the dualistic mode of worship of the Brahma Samaj. My question is, what we know, Brahma Samaj, they do not worship in any god, then how they are dualistic? नहीं, वो ऐसा है कि वो निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार को मानते हैं, वो मूर्ति को नहीं मानते। अच्छा, पर साकार, ब्राह्मण समाज में जाओगे तो वहाँ मूर्ति नहीं दिखेगी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को नहीं मानते, वे भगवान को मानते हैं, निराकार भगवान को मानते हैं, साकार भगवान, कृपा करने वाले भगवान को मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते हैं। वो मूर्ति को नहीं, जिस प्रकार से दूसरे जन्म में भी है कि मूर्ति नहीं मानते देरावासी जैन लोग, इट इज लाइक दिस। ये बहुत से जैन लोगों के पंथ में, हाँ, कि मूर्ति को नहीं मानते। हाँ, जैन लोग भी तो है, तेरापंथी लोग मूर्ति नहीं मानते। तो लाइक दैट। जी महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल है, मास्टर gave me those books which he forbade others to read. Why it is forbidden to others to read? जी, क्योंकि अद्वैत की बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल जी। अब वो अद्वैत में क्या है, अद्वैत पक्का अद्वैत वेदांत में तो ईश्वर, जीव, जगत ये सब मिथ्या है, हाँ, केवल ब्रह्म है जी। तो ये लोग बचा नहीं सकते हैं ना। हाँ, तुम भी मिथ्या हो, मैं भी मिथ्या हूँ, गुरु भी मिथ्या है, शिष्य भी मिथ्या है जी। तो ये पक्का अद्वैत है, तो ये लोग हजम नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि इसको मत पढ़ो। अच्छा, पर इसको यानी इन द बिगनिंग साधक को नहीं पढ़ना चाहिए बस। ओके, अच्छा, माय थर्ड क्वेश्चन इज हाउ अध्यात्म रामायण इज डिफरेंट फ्रॉम तुलसीदास एंड वाल्मीकि रामायण, एंड how is it not dualistic when we always read the Ram is a god here? तो तुमने पढ़ी क्या रामायण? अध्यात्म रामायण नहीं पढ़ी ना? नहीं पढ़ी, मैंने यही पूछना है जी। हाँ, पर रामचंद्र जी सीता को उपदेश देते हुए कहते हैं, हाँ, वो सब अद्वैत वेदांत में भरे हैं। अच्छा, हाँ, सारा किताब जो है अद्वैत वेदांत में पढ़ी हुई है। उसके बाद में नारद आते हैं, नारद का भी है, हाँ, सीता के पास आते हैं या क्या होते हैं, तो सीता उनको उपदेश देती है जी। वनवास में जाते हैं तो सीता को हरण हो जाता है, वहां पे भी सीता जो है वो अद्वैत वेदांत की बात करती हैं। सारी किताब अद्वैत वेदांत से भरी हुई है। वहाँ ये लिखते हैं कि राम न कहीं जाता है, न आता है, न वध करता है, न कुछ करता है। तो ऐसा जो है बाबा जी महाराज, तो जो हम रामायण पढ़ते हैं या कोलोक्वियल लैंग्वेज में जो रामायण के बारे में बात होती है, वो और ये दोनों अलग है। यस, हाँ, अध्यात्म रामायण बिल्कुल अलग है जी, ये पढ़ना जी। हाँ महाराज जी, मेरा नेक्स्ट सवाल है, the master gave different teachings to different devotees as it is written in the article. It means guru knows what to give and what not to give to a devotee according to his
स्टैंडर्ड। क्या हुआ? महाराज जी 103 पेज पे लिखा हुआ है, मास्टर gave different teachings to different devotees as it is written in the article. It means और ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, कुट 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 हो रहा है। जी जी, अब क्लियर है महाराज? यस, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ये इसके हाँ अंदर ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो कहा गया है वो स्वामी जी के लिए कहा गया है कि रामकृष्ण देव ने टीचिंग्स जब करते थे दूसरे साधकों के साथ, उसके बाद नरेन को ये रोक लेते थे और उनसे अलग बात करते थे। हाँ हाँ, तो ये क्या हाँ, है? तो क्या तुम्हारा प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि एक साधक के लिए और दूसरों के बीच में डिफरेंस किस कारण से होता है, क्या कारण होता है जिससे ये करना पड़ता है? नमस्कार। नहीं समझ में नहीं आया दिले। The master gave different teachings to different devotees as it is written in the article at page number 103. अच्छा, उसके आगे 104 में लिखा है, then the boy Swami did not realize that truth in the practical world assumed different forms according to different conditions and capabilities. Hello. Hello. हाँ. The boy Swami did not realize the truth of practical world different from according to different conditions capabilities. Yes. It was शिवरात्रि, वो हो गया। हाँ। तो ठाकुर जो है वो एक बात को, सभी बात को, वो सब बातें सबको एक साथ नहीं देते थे, यही बात है ना? हाँ, यही बात है, एक साथ नहीं देते थे और एक शरीक ही नहीं देते थे। और हाँ, एक साथ नहीं देते तो एक शरीक की बातें नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के लिए अलग से बुला के 2-3 घंटे बिठाते थे जब सबको दूसरों को चले जाने का। तो वो अद्वैत, ये तो हो गई, बात हो गई ना। वो अद्वैत वेदांत वो कह रहे थे दूसरे सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद स्वामी जी ने दूसरे को स्पर्श कर दिया तो उसमें उन्होंने अद्वैत का भाव डाल दिया तो उसका सब भाव नष्ट हो गया। हाँ बराबर, ये नीचे लिखा हुआ स्वामी अभेदानंद जी के लिए हुआ था। हाँ, अभेदानंद जी, हाँ बिल्कुल, अभेदानंद जी के लिए हुआ था। महाराज जी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? हाँ, ये मेरा प्रश्न था कि हर साधक को एक शरीका ज्ञान की जरूरत नहीं है शुरू में और न देना चाहिए, ये बात सही है? हाँ, और ये गुरु एक ही तरह का ज्ञान देना है। हाँ हाँ, अगर हम दिलीप भाई को अद्वैत वेदांत दे देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जी हाँ, उनका संसार चलाना है ना भाई। जी 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 हाँ हाँ। महाराज कथामृत में है ना, को अपने अनुसार दे। हाँ महाराज कथामृत में है ना, एक माँ 5 बच्चे को अलग अलग तरीके से एक ही चीज बना के देती है। ये देखो, उस अपने खाने के बारे में तो दृष्टांत दिया जी। हाँ, एक माँ जो है वो पेट में किसी का इंडाइजेशन होता है तो उसको मिर्च नहीं देती, दूसरा वाला पचा लेता है तो उसको ज्यादा बढ़िया दे देती है। हाँ। उसी प्रकार से गुरु देख लेता है कि भाई इसको द्वैत भाव से करना चाहिए, उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, दूसरे को वो राम की कहते हैं, तीसरे को कहते हैं कि तुम एकांत में साधना करो। गुरु अपने आप अलग अलग सबको जान कर। जी 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 महाराज जी, बस ये महाराज जी मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, पूछूं? नहीं, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, सब बीच में मत लाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी महाराज। अब हाँ बराबर, ये समझ में आई है मैं। अच्छा, when sporting like a man, the divine behaves like a man. Is there any example? इसका मीनिंग क्या है महाराज जी? ये पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ है। क्या है? पेज नंबर 107 पे सब हेडिंग दिया हुआ टाइटल, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ये हाँ, इसमें लिखा है टाइटल है नंबर 6, sporting like a divine man, the divine becomes behaves like, यानी जो भक्त, जो भगवान जब संसार में लीला करते हैं, जी हाँ, संसार में जब लीला करते हैं तो वो भक्त या मानव बन के जो मानव जैसी लीला करते हैं। यानी भगवान जब कृष्ण बालक बन गए तो बालक जैसा ही उन्होंने किया था। जी जी जी। जब बड़े हुए तो बड़े जैसा ही किया था उन्होंने।
जी, तो जैसे बनते हैं वैसे आप कार्य करते हैं, ठीक बात। अच्छा, राइट महाराज। नेक्स्ट इज द फ्री विल एंड द predestination, self effort and self surrender. The English text meaning I understand of these sentences, but the religious meaning I do not understand. इसका मीनिंग क्या है? और आगे लिखा भी ये है कि प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। आई नो हियर अंडर द एग्जांपल्स आर गिवन, 107 पे एग्जांपल भी दिया है, पर ये समझ में नहीं आया महाराज मेरे को। फ्री विल, फ्री सरेंडर, सेल्फ एफर्ट एंड सेल्फ सरेंडर, ये अभी तो इतना डिस्कस किया ना। फ्री विल, हमारी जो इच्छा है, फ्री विल। फ्री विल यानी मेरी अपनी इच्छा से करूंगा, मैं जो कुछ करना है मैं अपनी इच्छा से करूंगा। नहीं, साधना करना मैं अपने ढंग से करूंगा। नहीं, पर आगे लिखा है प्री डेस्टाइन है, फ्री विल से मैं नहीं कर सकता हूँ, प्री डेस्टिनेशन भी तो है। इट इज ऑलरेडी डेस्टाइन्ड व्हाट आई एम गोइंग टू डू। द फ्री विल एंड हाँ, तो ठीक है, अगर तुम छोड़ दो, पूरी तरह छोड़ दो, छोड़ सकते हो तो छोड़ो। नहीं, अगर तुम पूरी जी जी फ्री विल एंड प्री डेस्टिनेशन, उसमें गड़बड़ हो जाती है ना। मैं अपने ढंग से करूंगा, तो मेरा तो पहले से बना बनाया है, वो भाव स्वीकार नहीं करना पड़ेगा तुमको। हाँ, वो पूछना प्री डेस्टिनेशन, यस, समझ गए ना। पर कि मैं मेरी नियति निर्धारित है, यदि ये मान लूं मैं, तो फिर सेल्फ विल नहीं होगा, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। क्यों करूंगा मैं? जी, यही मेरा ये दोनों विरोधी हो गए ना। हाँ, यही विरोधी हो गए। जी, ये मेरा पूछना था कि ये, हाँ ठीक है, इसमें विरोध हो जाता है। नहीं, और सेकंड है सेल्फ एफर्ट एंड सेल्फ सरेंडर, ये भी विरोधी है। नहीं, दोनों में से स्वीकार करो, तुमको क्या चाहते हो। अच्छा, इट इज अप टू मी, आई हैव टू डिसाइड। हाँ। ओके, जी 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 महाराज जी। और एक आखिरी सवाल है महाराज जी, इन द बिगिनिंग व्हेन गॉड टेक्स बर्थ, नॉट अवतार, how a person knows that a god or avatar has come on earth? As it is said in the beginning view, very few knows Ram Krishna there was Lord Krishna and Ram, who has come as Ram Krishna and will be worshipped as God. We say that after 500 years the whole world will worship him like a god. तो ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि किसी ने जन्म लिया है, वो ईश्वरीय अवतार है? How can we recognize? हाँ, ये कैसे मालूम पड़ता है? ये तो प्रश्न वहाँ पे क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा है तुम्हारा क्वेश्चन? वहाँ पे क्या लिखा है? ये किताब का सवाल नहीं महाराज, इट इज आउट ऑफ दिस बुक। ऐसा है कि कृष्ण को भी जो है ना, वो स्यमंतक मणि चोरी करने का इल्जाम लगाया था। हाँ जी, बिल्कुल। कौन माना था उसको? भगवान। हाँ, राम जी तो है, वो सीता के लिए रोए थे जी। तब तो वो संसार में जब रहते हैं तो बिल्कुल मानव जैसे ही रहते हैं, और इसलिए उनको समझना बहुत कठिन होता है। बराबर। अब मेरा छोटा सा सवाल ये है कि किसी ने श्री राम कृष्ण को कैंसर हो गया था। श्री राम कृष्ण कहते थे कि अगर लोग मेरे को भगवान बोलते हैं, देखो मेरे को कैंसर हो गया, भगवान हो गया, क्या कैंसर होता है? हाँ जी जी। तो फिर तो वो मेरा, जैसे अभी ये कहा जाता है कि आखिरी 50 साल के अंदर कृष्ण ने फिर से अवतार लिया है साउथ में, जिसका नाम है कलगी अवतार। तो आज नहीं माना जाएगा, 100 साल बाद या 50 साल बाद कैन बी रिकॉग्नाइज दैट ही इज अ गॉड, या कैसे होगा। हाँ, 200 साल में पता चल जाएगा। अच्छा, तो अभी हमें उसको एज ए सिंपल मैन समझ के हम उनके साथ अरे अभी तुम तो मर जाओगे। 50-100 साल के बाद में ब्रह्मेशानंद ने, क्या मालूम ब्रह्मेशानंद अवतार हो जाए तो। महाराज जी ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ ले महाराज। आपको भी तो जरूरत नहीं महाराज जी, आपको भी तो जरूरत पड़ेगी ना 18 लोगों की, तो हम ये 25 आपके साथ चलेंगे ना। हम 25 वो जो भी हो, यहाँ तो रोज आता 22, आज तो 24 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं क्या बताऊं, मैं तो अवतार तो हो ही गए हम। जी महाराज जी प्रणाम। जी महाराज, ठीक है। और कुछ? बस महाराज जी प्रणाम। जी महाराज प्रणाम। अच्छा ठीक। अच्छा, सतीश विग।
और कौन था उसके बीच में, कोई है क्या? नाम रह गया। अच्छा ठीक है, आ जाओ, कुंडू आएगा उसके बाद में। सतीश आ जाओ। हाँ जी जी महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन, according to this article we must consider Sri Ramakrishna as avatar of Ishvara, having taken birth with human qualities, human attributes, who has crossed the veil of Maya by the self effort. तो क्वेश्चन महाराज ये है कि हाउ डू वी वर्शिप हिम, एज ह्यूमन बीइंग हु क्रॉस द वेल ऑफ माया और अवतार ऑफ द ईश्वर? देखो, यू क्रॉस द, जिसने क्रॉस द वेल ऑफ माया होता है ना, वो होते हैं जीवन मुक्त। समझे मेरी बात? जी महाराज, जी हेलो? जी जी महाराज। तो हाँ जी, सुन रहा महाराज, सुन रहा। जो संसार के बंधनों से को काट डालते हैं, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। जी महाराज, जी महाराज। और अवतार उससे ऊपर होते हैं। जी महाराज। तो अब तुम जैसा तुम ठीक समझो वैसा पढ़ो, करो, तुमको जो ठीक लगे वो करो। तो ये कहने का मतलब ये महाराज, कहने का मतलब ये कि आर्टिकल का भाव क्या है, मैं समझ नहीं पाया। मुक्त हो जाएंगे, समझेंगे, वो दूसरी बात है। हाँ महाराज, मेरा जी क्वेश्चन ये है कि मैं आर्टिकल का भाव समझ नहीं पाया, कैसे जो अवतार होते हैं उसको कैसे लेना चाहिए? वो ह्यूमन बीइंग्स की व्यवहार करते हैं, लेकिन उसमें डिवाइन क्वालिटीज होती हैं। जब पहला क्वेश्चन के कैसे पहला क्वेश्चन पूजा करनी चाहिए? देखो ऐसा है, हाँ जी, कि अवतारों को जो है अवतार के रूप में उसकी पूजा करनी चाहिए, और जीवन मुक्त साधक के रूप में उनके साधना का अनुसरण करना चाहिए। जी जी महाराज, जी महाराज, जी जी महाराज, जी महाराज, दोनों करने चाहिए, दोनों ही करना चाहिए। एक तो को भगवान भी मानना चाहिए और उसकी लाइफ को फॉलो करके साधना भी करना चाहिए। ठीक महाराज। So Maharaj, Ramakrishna's life is very much delineated before us, but as said, except Lord Buddha, Sri Chaitanya and Sri Ramakrishna, the lives of other avatars such as Sri Krishna, Sri Rama, Christ are not delineated before, being prehistoric. My question is, how then we follow their lives as guiding post at that of Sri Ramakrishna? श्री रामकृष्णा की लाइफ को तो जैसे अभी बताया कि जीवन मुक्ति के लिए फॉलो कर सकते हैं, उनकी श्री रामकृष्ण श्री कृष्ण की लाइफ को कैसे फॉलो करेंगे? ऐसा ये सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे राम की पूजा करना, राम की पूजा करो और पुरुषोत्तम राम के जीवन का अनुसरण करो, कृष्ण की अवतार के रूप में पूजा करो, और गीता और भगवान के 11वां अध्याय का उपदेशों का पालन करो। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। बोल रहे हो क्या? मैं नहीं सुन रहा, तुम सुन पा रहे हो मेरे को? हम लोग भी सुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी सुन नहीं पा रहे हैं। जी महाराज, जी महाराज, सुन रहा हूँ महाराज। तो ये प्रश्न तुम्हारा उत्तर हुआ? जी जी महाराज, जी महाराज। पर उसमें कहा है ना कि जैसे श्री रामकृष्णा की लाइफ जो है वेल डेलिनेटेड है, लेकिन उन अवतार्स की प्री हिस्टोरिक है, उनकी लाइफ तो वेल डेलिनेटेड नहीं है। इस कंटेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन था। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। यानी राम और कृष्ण की लाइफ तो है ना जी, वो तो माइथोलॉजी है। वो राम कृष्ण हो, राम और कृष्ण हुए कि नहीं हुए ये नहीं जानते। जी जी जी। लेकिन फिर भी उनके जीवन के दोनों पक्ष है ना। जी जी। उनका हम अवतार के रूप में उनकी पूजा भी कर सकते हैं, और उनके अवतार के रूप में हम पूजा भी कर सकते हैं उनकी। जी महाराज। और उनके जो उपदेश हैं उनको जीवन में डाल भी सकते हैं। जी जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, जी हो गया क्वेश्चन महाराज।
जी। और second question, so Sri Ramakrishna said, this mold is prepared, cast your minds and get the form. क्या इसका मतलब यही सेम है जो आपने जवाब दिया? नहीं आ रहा है, एंगल बदलो तो। विद्यालय हम क्या लो 600 अरे नहीं मेरे को ये अपना प्रीपेड काउंटर सीएन विद्यालय अमावस। संजय देखो तो भाई क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है। दिलीप भाई का म्यूट कर दो, दिलीप भाई का म्यूट कर दो। देखता हूँ म्यूट हो गया, आप जारी रखें। जी आप शुरू करो। जी महाराज, माय सेकंड क्वेश्चन भी ये था ना, श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से दिस मोल्ड इज प्रिपेयर्ड, कास्ट योर माइंड्स एंड गेट द फॉर्म। तो क्या इसका मतलब भी सेम है कि हमें जो उनके लाइफ्स को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए? हो गया क्वेश्चन। नहीं मैंने कहा ना, उनके उपदेशों को फॉलो करना चाहिए। जी 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 जी, ठीक। तुम्हारा प्रश्न क्या है बाबा? क्लियर ही नहीं हो रहा है। समझ गया मैं, उनकी लाइफ को फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब यही है। दिस मोल्ड इज प्रिपेयर्ड, जो उन्होंने मोल्ड प्रिपेयर किया उसी को हमको फॉलो करना चाहिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन, बाय द एग्जांपल ऑफ टीथर्ड काउ, टीथर काउ की ठाकुर ने एग्जांपल दी ना, explain that God has given some freedom, thus we must make our little bit of sadhana and then God's grace will come. Of course we must make our efforts and do sadhana, but my question is how to use this little freedom given to us by Lord in worldly matters. हम जो है, जो फ्रीडम हमें दी है, उसको वर्ल्डली मैटर्स में कैसे यूज करना चाहिए? तो क्या हमें भगवान पर सरेंडर कर देना चाहिए या फिर हमें एफर्ट्स करने चाहिए? स्वधर्म पालन करना है, स्वधर्म तो पढ़ना पड़ेगा तुमको, भगवान ने स्वयं कहा है तुमको। जी महाराज। भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए। जी। तो आपको जो फ्रीडम है, भगवान ने मार्गदर्शन दिखाया है आपको, गृहस्थ के रूप में, एक आदर्श गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करना है। जी करना पड़ेगा। पालन करो ना। हाँ जी। वही साधना भी हो जाएगी। जी महाराज, हम ये नहीं कह सकते कि सेल्फ सेंटर है कि हम जो परमात्मा करता वही हो रहा है। अरे तो फिर वहां तो फिर फ्रीडम कहाँ आई? परमात्मा करता है तो फिर चुपचाप रहो, भगवान ही कर रहा है, तुम्हारे को फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम नहीं। रस्सी जो है, रस्सी तो भगवान ने लंबी कर दी है। इतनी तो मेहनत है, इतनी तो फ्रीडम है तुमको, युद्ध करने की फ्रीडम है, लेकिन अभिमन्यु मरने का, उसको रोकने की फ्रीडम तुमको नहीं है। यानी रस्सी जितनी लंबी है उतनी कर सकते हो तुम, कंफ्यूज मत हो जाओ। यानी तुम भगवान पे भी डालना चाहते हो और कहना चाहते हो कि हम क्या करें, ऐसा नहीं होता। जी महाराज जी। Got my point? क्या हुआ सतीश, सुनाई नहीं दे रहा है? राइट महाराज। हाँ दे रखी है। क्या हुआ? राइट बोला ना। राइट बोला। ठीक है, ओके ठीक है। अब कुंडू आ जाओ। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, क्वेश्चन 1 in page 107, 2 classes of teaching of the master must be meant for 2 types of sadhakas. What are the characteristics which differentiate them? Can we tell that the first type of teachings are for the householders and the other for monks? How does it affect their sadhana? No. There is no difference like this, that this is for householder and this for grahasthas. Okay, Maharaj. Then the 2 class क्यों बोल रहा है? तो 2 classes नहीं, हाउसहोल्डर और सन्यासी दोनों, या सेल्फ एफर्ट करो या सरेंडर करो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द 2।
ओके ये सारे जो है वो सबके लिए है, गृहस्थों के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी। ओके सो अगर सेल्फ सरेंडर है तो हिज साधना दैट टाइप ऑफ साधना विल बी डिफरेंट देन जो सेल्फ एफर्ट वाले हैं। सेल्फ एफर्ट वाली बिल्कुल डिफरेंट होगी, सरेंडर वाली बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके लेकिन भाई इतना आसान नहीं है, बार बार सब सेल्फ सरेंडर बोलते हैं। वो गिरीश चंद्र घोष के सिवा और कोई नहीं सेल्फ सरेंडर कर सका है। और उसकी कितनी परेड हुई थी मालूम है ना, कैसी हालत खराब हो गई थी। तो हम लोग जो है जितना रस्सी जितनी लंबी है उतना हमको सेल्फ सरेंडर और पुरुषार्थ करना है। यस उसके बाद में अगर खूब संघर्ष करेंगे तो भगवान फिर रस्सी लंबी कर देंगे। दैट इज वेरी क्लियरली स्वामी जी भगवान ने, ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह बात कही। Then second question, Maharaj, the effort, page 117, the effort to know the universal cause beyond time and space is called sadhana. Its result is stated to be the realization of Brahma in all beings. This idea, now it's my personal experience, this idea is so grand that I don't feel that I am capable of achieving it. Can we have a lesser goal for our spiritual practices? Absolutely no. We'll go on compromising, coming down and down and down. No. Sarva Bhute Brahma Darshan is the goal. Don't compromise it. Okay, man. It may take many lives. In this life, it will not better. We change it with this life. No. जितने भी जन्म लगेंगे गोल यही है. We must be prepared to wait. No excuse. No lowering of the ideal. And if you do it, you will not get anything. Even the lower ideal you will not get. Be very careful. Don't compromise. Don't compromise with the goal. And I cannot do sadhana. That is also will not do. Try your struggle, your highest, best. No, if I can give a worldly example, like say I cannot solve a problem in whole totality, but we are supposed to break it in parts and धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं and एक टाइम में जाके ये हो जाता है. Practical Vedanta is all right. Okay. And practical Vedanta is all right, but don't lower the ideal. Acha. So ideal should be always intact, but we can take it in parts. Practical and Vedanta is all right, but don't lower the ideal. Yes, man. Understood. Now, Rita Vishwal. Rita Vishwal, are you there? Shivani, कौन करेगा फिर? महाराज जी रीता विश्वाल वो पूछो महाराज. She just left. वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई रीता विश्वाल. चलो कोई ले लो. मैं पूछूं महाराज? पूछो, ठीक है. हाँ, पेज नंबर 101. हाँ, पेज नंबर 101. What mother wills happens. Last lines. If everything happens with God's will, then what is the role of karmas? मतलब ठाकुर बार बार यही कह रहे हैं ना इस पैराग्राफ में. वो सब ऐसा है कि ये शारदानंद जी ने इस आर्टिकल में ये सब डिस्कस किया है. यानी सेल्फ एफर्ट और प्री डेस्टिनेशन दोनों है ना. गॉड्स ग्रेस एंड सेल्फ एफर्ट एंड कर्मा, ये दोनों जो है वो साथ में रहते हैं. गॉड टेक्स सच ए पर्सन जो फुल्ली सरेंडर भगवान के प्रति हो, तो भगवान जो है वो उसका सब कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं. अच्छा. God takes such a person fully surrenders through his karmas only. He also suffers, gets joys, etc. All are getting this. क्या लिखा है मैंने? यानी साधना also people do according to karma. याद रखिए.
जैनिज्म में तो क्या है, केयर कर्म को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस, ऑलरेडी गिवन द इम्पोर्टेंस। नारद ने क्या है, नारद कहा ना कि उसको क्या तुम्हारा प्रश्न क्या है, नारद ने कहा ना कि भगवान वो नरक का वर्णन करना था ना, नारद को नरक का वर्णन किया, तो नारद को भगवान ने बना के बता दिया ये नरक है, उसके ऊपर कूद पड़े वो, और कि मेरा नरक का जन्म हो गया, कि हो गया, हाँ, उनको खुद उसका एक्सपीरियंस स्वयं हुआ। मतलब ये है कि जो प्री डेस्टिनेशन है वो तो होने वाला है, और उसमें भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, भगवान ज्यादा कुछ करते नहीं है। माँ शारदा कहती हैं कि एक तलवार लगने वाली थी, उसके बदले एक सुई लग गई बस, लेकिन प्री डेस्टिनेशन तुम्हारा कर्म तो भोगना पड़ेगा ही। भगवान की भक्ति करोगे, साधना करोगे तो वो कम हो जाएगा, बस इतना ही। ये तुम्हारा प्रश्न क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ? महाराज मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये इन्होंने शायद स्पिरिचुअलिटी पे ही कहा है नहीं ना। आ रहा है बाप रे। हाँ महाराज आ रही है आवाज? संजय, संजय आज बहुत कष्ट हुआ भाई, ये भी नहीं आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हम शिवानी को। महाराज हम लोग सुन पा रहे हैं। महाराज का शायद बैंडविड्थ कम है थोड़ा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। महाराज मैं ये पूछ रही थी कि कर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कई चीजें होती हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें बताते हैं तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और अपनी पुरानी हैबिट्स छोड़ते हैं, तो वो चीज इसमें मतलब हेल्पफुल है? हाँ, क्या उसके बाद फिर नहीं सुनाई दिया। महाराज जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं हमें, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो हम लोग वो कर्म कर रहे हैं ना, कि उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये कर्म हो गया। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि मदर विल्स हैपेंस, बार बार उन्होंने वो चीज कहा है, वो मतलब कृपा होगी बाद में होगी, इस तरह से कुछ रिलेट करेंगे? स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे कि गॉड्स ग्रेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। अगर तुमको लग रहा है कि मैं तपस्या करूं, ध्यान जप करूं, साधना करूं, तो समझ लेना है कि तुम पर भगवान की कृपा है। अच्छा, ठीक है। गॉड्स ग्रेस कम इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। मतलब ऑटोमेटिकली अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो वो कृपा हो रही है हमारे ऊपर, ईश्वर की इच्छा वही है। घास खाएंगे तभी रस्सी लंबी करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ, पेज नंबर 107, सेकंड पैराग्राफ। On the one hand, we find him saying to his devotees, I have cooked food, simply sit down to partake of it. On the other hand, give up all desires. So if we'll give up all desires one by one, then we'll not be interested in all the worldly activities also. So how is it possible to live amid us in this world and with the people? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे इसका मतलब ये है कि वासना त्याग नहीं करना, वासना त्याग करना ही सारी साधना का लक्ष्य है। और उसके बाद में जो हो जाता है वो कौन हो जाता है? जीवन मुक्त हो जाता है। तो जीवन मुक्त की वासनाएं नहीं होती, क्या संसार में नहीं रहता है क्या वो? ये ठाकुर स्वामी जी ये जीवन मुक्त थे, संसार में नहीं रहे क्या? नहीं, वो तो रहे। हाँ, वो तो रहे, पर वैसे मैं अपने लिए पूछ रही हूँ कि फिर हमें इंटरेस्ट नहीं होता इतना घबराते क्यों हो कि मैं वासना त्याग करूंगी तो क्या संसार कैसे चलेगा? ऐसी बात नहीं। नहीं महाराज, वैसे कि फिर इंटरेस्ट नहीं रहता ना, लोगों में भी नहीं रहता, बाकी एक्टिविटीज में भी नहीं रहता, फिर वो तो फिर लगता ही है कि सब मन जो है ना, वो 80% मन भगवान में रहेगा, 20% मन से संसार अच्छी तरह चलता है। वो मतलब वो समझते नहीं इस बात को।
20% मन से, इवन 10% मन से संसार खूब जम से चलेगा। 90% मन भगवान में रखो, वासना त्याग करो, संसार बहुत बढ़िया चलेगा। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। इधर संसार समाप्त हो जाए, कुछ नहीं मरेगा। ठीक है महाराज। बल्कि भगवान है ना, अब वासनाएं त्याग दोगे, भगवान तुमको अपने हाथों का यंत्र बनाएंगे। भगवान बड़े आनंद में रहेंगे। हेलो, बिल्कुल त्याग करो, बिल्कुल मन से त्याग करो। बाहर से त्याग करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वासनाओं को त्याग करने में इतना आनंद आएगा कि बस निर्वासना होके संसार में रहो, मजे से रहोगे तो संसार का काम करोगे, आराम से काम होगा, बढ़िया होगा। मतलब वही डिटैच होके, है ना? ठीक है, गायब हो गया। हाँ महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, लास्ट। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ तुम्हारा? जी हो गया। हाँ महाराज, पेज नंबर 114, the way out is to remove the ignorance. I can tell you with certainty that ignorance and delusion can be removed. The ancient seers were able to remove them and have left us instructions about this method. So is this ignorance can be removed through meditation? ना, इग्नोरेंस को दूर करने की बहुत सारे मेथड्स हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो हैं, ये वो क्लेश बनाए गए, उसमें अविद्या भी है। पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ये अहंकार जाता है, अविद्या जाती है। विवेक, वैराग्य के द्वारा अविद्या जाती है, भक्ति के द्वारा अविद्या जाती है, और निष्काम कर्म के द्वारा भी जाती है, केवल मेडिटेशन से नहीं। ये सारे उपाय जो हैं वो अविद्या को दूर करने के लिए है, अज्ञान को दूर करने। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज, दैट्स ऑल। ओके, हो गया तुम्हारा, सब हो गया? जी। अच्छा, अब कौन बचा है? महाराज, मैं पूछ सकती हूँ? बहुत सारे। इतू आ जाओ, इतू आओ। प्रणाम महाराज। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, बट हाउ इज इट दैट दे कांट? देयर इज however one thing he does it not give one more power if the little that is given is not properly used. So please explain this part clearly. क्या बोला है? From the text, वो पेज नंबर जो आप भेजे हैं उसमें 10 नंबर, पेज नंबर 10 और एंड ऑफ सेकंड पैरा। 10 नंबर तो बड़ा मुश्किल है। 10 नंबर कहाँ आएगा? एक मिनट, 2 है ना, 2 में से पहले वाले में 10 है जी। हाँ बोलो क्या है? हाँ, और सेकंड, एंड ऑफ सेकंड पैरा। But how is it that they can't? There is, however, one thing. He does it not give one more power. No, मिल नहीं रहा है मेरे को। पेज नंबर 10 तो मिला मेरे को, लेकिन वो रीड आउट। अच्छा, पेज नंबर 10 में सेकंड पैरा एंड, करीब एंड में है। Just a minute. क्या है बोलो? हाँ, now you tell me. हाँ, but how is it that they can't? ना वो तो रस्सी और रोप है ना? नहीं, रोप नहीं है। The free will and predestination are related. That is what is the question. हाँ। So this part, जी, so ये पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, हमें नहीं समझ में आ रहा ठीक से। ना क्वेश्चन है तुम्हारा, a man ties a cow, let her lie down, stand up, move, whatever she wills. There is the page number, second para ना? पेज नंबर 10 में
सेकेंड पैरा का एंड में है। जी पढ़ू इसको, मैं पढ़ू? Read out what you written. But how is it that they can't? नहीं, There is, शुरू से पढ़ी ना, थोड़ा शुरू से पढ़ते। सब महाराज जी पढ़े शुरू से। The master said, of what avail is it to say? They are empty words. What avails it to say there is no thorn, no pricking? As soon as you touch a thorn, you cry out, ah! If the practicing of sadhana were in the hands of man, all would have undertaken it. But how is it that they can't? Yes, done. So Yes. What is the question? So I cannot, please explain this part. No, वो तो explain. You want me to explain? That is the question is that Master said, Jabna said, the man who has hand in practicing religious, the man has no hand in practicing religious disciplines. Everyone may say, whatever I do according to his will. ऐसा है कि हम कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर होता तो कोई सुई लगती, अगर पैर हाथ में कांटा लगेगा तो कोई तो बोलता नहीं कि भगवान की इच्छा से हुआ, वो बोलते हैं वो कष्ट हो रहा है। तो भगवान की इच्छा से कहना इज नॉट इजी, दैट इज द व्हाट श्री राम कृष्ण से। तो जितना आपको मैं पावर यूज is given the power, make use of it. Don't bring out predestination, bring it here, predestination there. You will not be able to follow it. That is what समझ गए। ठीक है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द टेक्स्ट, ये है एंड ऑफ फर्स्ट पैरा 9-11, वो सेकेंड मतलब सेकेंड टॉपिक में से सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड टॉपिक में पेज नंबर 9 नंबर पेज 9 नंबर एंड ऑफ फर्स्ट पैरा। बोलो। है द पिक्चर कंटिन्यू, बोलो। The picture continues to stand motionless before him till the mind begins to tire. So my question is, what is this tiring of mind? Is it that the mind does not want to believe, or the mind is still restless? You see, mind is constantly in flow. Yes. Again, page number and 9, second topic में 9 number page, end of first para. एक मिनट सेकेंड टॉपिक में 9 पेज नंबर 9 जी। लाइन नंबर end of first para. That is talking about Nirvikalp Samadhi, na? The picture continues to stand motionless before him till the mind begins to stir. No, yeah, it is like Nirvikalp Samadhi. From there. Yes. From there. Yes. वहीं से है। बोलो देवाशीष, could you get it? Yes, I could get it. महाराज जी ये है 12 नंबर निर्विकल्प समाधि, आपने सही पकड़ा। We have said before that the devotee accepts as his chosen ideal some particular form of God and continues to think of and meditate on that form. He cannot in the beginning bring before his mind's eye at the time of meditation the complete picture of the person of his chosen ideal. Sometimes the hands of the mental picture, sometimes the feet of the feet, and sometimes only the face appear before him. These again dissolve as it were
as soon as they are seen, they do not continue to stand before him. As a result of practice, when meditation becomes deep, the complete picture of that form appears before his mind. Okay. What is the question? The question is, what is this tiring of mind? Is it that the mind does not want to believe, or the mind is still restless? What is the tying of mind? क्या said? Tiring of mind. मतलब what is the tiring of the mind? मन थक जाता है. Tiring. S-T-I-R. Tiring. हाँ. Tiring. Stirring of the mind. हाँ. Steering of the mind. बंगाली जे आते ना ओटा देखते হবে. महाराज जी ये वैसिलेट करता है ना, ऑसिलेशन, माइंड जब स्टील हो जाता है पिक्चर लगता है. Before the mind and meditation gets deeper, the picture continues to turn before till the mind begins to stir na. Yes. Stir. After record now, stir the mind. And when mind is slight movement of the mind. Oh, अच्छा. Just slight movement of the mind. Okay. अच्छा. A third question है, a person who has the vision of one such form in that living fashion gets easily the vision of all other forms. The same para like this, जो अभी प्रश्न पूछा ना उसी पैरा में थोड़ा नीचे है. A person who has the vision of one such form in that living fashion gets easily the vision of all other forms. अगर आपको रामकृष्ण का फॉर्म का दर्शन हो जावे तो राम का, कृष्ण का, ईसा का सब का दर्शन आसानी से हो जाएगा, ये मतलब है. मगर अगर हम ना चाहें फिर भी हम केवल रामकृष्ण का ही दर्शन करना चाहें फिर भी राम तो का मत करो. तुम्हारी यदि चाहो तो आसानी से हो जाएगा. अच्छा. करना चाहो तो मत करो. अच्छा, ठीक है. प्रणाम महाराज जी. अच्छा, शिवानी हो गया, ईतू हुआ, रीता विश्वास चली गई, नहीं आई. तो अब है सपना है. प्रणाम महाराज. हाँ, एक्चुअली वो हो गया, मेरा जो 2 क्वेश्चंस था उसका आंसर मिल गया मुझे ये डिस्कशन से. अच्छा. हाँ, प्रणाम महाराज. ओके, हो गया सब. अच्छा, निवेदिता है कि नहीं? जी महाराज. अच्छा, आ जाओ. पहला प्रश्न है, इन डिवाइन कार्नेशन डिवोटीज लव अवतार मच मोर देन his power. The power is rather hindrance for the devotees. Then why devotees can't think of Lord without power? Page number 101. अरे तो लॉर्ड को पावर छोड़ के ही तो सोचते हैं. ओए, रामकृष्ण का जो चिंतन करते हो तो ये हमेशा सोचते रहते हो क्या कि रामकृष्ण ने फलाने को स्पर्श कर दिया था, ये कर दिया था. श्री रामकृष्ण तो हमारे को बड़े प्रिय लगते हैं, जब वो नृत्य करते हैं तब अच्छे लगते हैं. तो ध्यान करते हुए श्री रामकृष्ण का चिंतन करते हैं, तो कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो बाल गोपाल का ध्यान करते हैं. वो कृष्ण जो है वो बाल गोपाल का ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है, वो पूतना का वध करना इतना अच्छा नहीं लगता है, एक्सेट्रा. अच्छा, दूसरा प्रश्न है. दूसरा प्रश्न आपने अच्छे से ज्यादा डिटेल में ही अपने डिस्कशन हो गया है. इन विच कैटेगरी ऑफ भक्त वी फॉल, सिंपली पार्ट टेकिंग द फूड और गिविंग द पावर ऑफ अटर्नी. तो ये आपने अभी तो डिस्कशन हो गया है. सेल्फ सरेंडर. इन विच कैटेगरी ऑफ भक्त वी फॉल, सिंपली पार्ट टेकिंग द फूड और गिविंग पावर ऑफ अटर्नी.
मतलब सेल्फ एफर्ट करना है कि सेल्फ सरेंडर करना, वो आपने अभी बता दिया है। ये तो पूरा क्लास में ये तो डिस्कस करते हैं। हाँ अच्छा, तीसरा है वी आर ऑर्डिनरी मॉर्टल बीइंग्स विद लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, अवतार कम्स विद कंपैशन। फिर से बोलो, सुनाई नहीं है। We are ordinary mortal beings with the impurities. Avatar comes with the compassion. What should be our approach to be able to receive His divine grace? वो तो अगर आपको ऐसा है ना कि हमारा पात्र जो है ना, डिवाइन ग्रेस तो बहुत सारी है। वो श्री राम स्वामी ब्रह्मानंद जी को जो पका पात्र जो था ना, वो डिवाइन ग्रेस का पात्र, वो बहुत चौड़ा था, बड़ा था, मटका था। उसके अंदर ठाकुर की ग्रेस बहुत ज्यादा चली गई। हमारा कप जो है वो छोटा सा मिट्टी का कप है, उसमें ठाकुर की ग्रेस कितनी कम आएगी। हमको साधना करके अपने आप को चित्त शुद्धि करके अपने मन रूपी जो पात्र है उसको जरा बड़ा करना पड़ेगा। साधना के बिना डिवाइन ग्रेस जो है ना वो आती है चली जाती है, क्या करें। बहुत पानी आ रहा है, तेजी से आ रहा है, वो तो कृपा की बढ़ी रही है, कृपा का जो है बारिश हो रही है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास पात्र इतना छोटा है, हमने साधना के द्वारा उसको बढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं करते हैं। संसार में चक्कर में पड़े हुए हैं तो पड़े ही हुए हैं, एक के बाद एक संसार में फंस रहे हैं और कहते हैं भगवान की कृपा नहीं होती। अरे भगवान की कृपा तो हो रही है, और तुम तो संसार में फंसे हुए हो, बीवी बच्चों में फंसे हुए हो, तो हम क्या करें, भगवान क्या करेंगे बेचारे। ठीक, बाल्टी में छेद है महाराज जी। हाँ छेद भी है, अच्छा बोला। और कहते हैं कि भगवान की कृपा कैसे। और एक चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द रेयर ऑब्जेक्ट? ये आपने कल बता दिया था। और हाँ ये। एंड पांचवा है, हाउ इंडिविजुअल माइंड कैन मर्ज टू यूनिवर्सल माइंड? हाउ इंडिविजुअल माइंड्स कैन मर्ज टू यूनिवर्सल माइंड। हाँ यही तो, दिस इज द आदर्श। ध्यान के द्वारा अपने अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। मन को यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि ऑलवेज हैव गिव एन इंजेक्शन ऑफ वेदांत, और हमेशा ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, परमात्मा का चिंतन करो जो सर्वव्यापी है, और कंसीडर करो कि तुम उसके अंग हो। तो ध्यान के द्वारा ये होता है। दूसरा है विचार के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ध्यान के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा है भक्ति के द्वारा, अहंकार को पूरी तरह नाश करने पर हमारा जो कॉस्मिक यूनिवर्स, जो छोटा सा मन है, वो यूनिवर्सल माइंड के साथ एक चला। ओके। एंड द आखिरी क्वेश्चन है, हाउ इज द लाइफ ऑफ अवतार मिस्टीरियस फॉर द ह्यूमन बीइंग? अवतार इज A life of avatar is mysterious for the human being. Page 118. हाँ 118 में है। यानी वो क्या है कि वो तो मिस्ट्री है ना, वो बाहर जो दिखाई देती है वो भगवान की जीव लीला नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी कुछ गड़बड़ है, जिसको मिस्ट्री बोलते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी चीज छिपी हुई है। ठाकुर जो दिखते थे तो लोगों को लगता है बड़े सरल सरल लिख रहे हैं, कितनी बड़ी मिस्ट्री पीछे ये। बस महाराज हो गए। महाराज जो लोग मिरेकल्स, जो लोग महाराज जी मिरेकल्स में, सपना मजूमदार हो गया। नहीं महाराज जी, मेरा एक सवाल था, जो लोग वेट तुम्हारा समय खत्म ही नहीं होगा, पहले देखने दो मुझे। सपना, निवेदिता हो गया, और रीता बिस्वाल भाग गई, और कोई बचा तो नहीं है? महाराज ध्रुव ने एक क्वेश्चन पूछना है। ध्रुव ने पूछना है एक क्वेश्चन। किसमें? ध्रुव ने पूछना है। नहीं, अब हम अलग से पूछेंगे उससे। अच्छा, वो मेरे से अलग से बात करेगा।
ठीक है। अभी हम ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।